تلنگانہ کے ضلع میدک کے نرساپور قصبے میں چہارشنبے کی صبح بندروں کے ایک جھنڈ نے 6 سالہ بچی پر اس وقت حملہ کر دیا جب وہ اپنا لنچ باکس لے کر اسکول بس میں سوار ہونے جا رہی تھی۔ متاثرہ بچے کی شناخت جوشنوی کے طور پر ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق جیسے ہی بچی بس کی طرف بڑھ رہی تھی، بندروں نے اس کا لنچ باکس چھیننے کی کوشش کی اور اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ گھبراہٹ کے عالم میں بچی سڑک پر گر پڑی۔ اس دوران بس ڈرائیور اور بچی کے والدین نے فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے اسے مزید نقصان سے بچا لیا اور بندروں کو وہاں سے بھگا دیا۔ بچی کو فوری طور پر علاج کے لیے نرساپور کے علاقے اسپتال منتقل کیا گیا۔ خوش قسمتی سے اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ نرساپور میں حالیہ دنوں میں بندروں کے حملوں کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں، تاہم بارہا شکایتوں کے باوجود متعلقہ حکام اس مسئلے پر قابو پانے میں ناکام رہے، جس سے مقامی عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ ضلع کے بیاسوباد کے کاغذ نگر بلدیہ میں انتخابات و انتظامات کی تیاریوں سے متعلق آج ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلکٹر دیپک تیواری IAS نے اپنے ہمراہ سب کلکٹر شاردا شکلا IAS کے ساتھ مل کر بلدیہ انتخابات کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلکٹر دیپک تیواری IAS نے مقامی بلدیہ کمشنر تروپتی سے بلدیہ انتخابات اور رائے دہی کے انتظامات سے متعلق تفصیلی طور پر جانکاری حاصل کی۔ ضلع کا مرڈی منڈل پٹلم کے مسجد طور آٹو نگر میں 3 فروری برد منگل کی شب بعد نماز شام شب بارات مسجد کمیٹی کے صدر جناب سید یادول کی زیر نگرانی میں منعقد کیا گیا۔ مولانا رقیب صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ رات مقدس ترین ہے اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور تمام مخلوقات کی روزی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت پر کثرت سے دعا کرنے کی تلقین دی۔ آخر میں مولانا کی ہی طویل دعا پر جلسے کا اختتام ہوا۔ محمد عثمان سینئر جرنلسٹ جن کی اہلیہ سابق رکن بلدیہ رہی، آج اپنی اہلیہ اور حامیوں کے ساتھ ترنمول کے الیکشن انچارج انل جادو و رکن اسمبلی بوتھ میں ان سے ملاقات کرتے ہوئے BRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر سینئر پارٹی لیڈر رام کشن ریڈی، محمد سلمان خان سابق معاون رکن بلدیہ راجندر، سابق رکن بلدیہ سابق ZPDC جیون ریڈی کے علاوہ خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ضلع کے بیاسوباد کے 10ویں جماعت ضلع انچارج اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے جناردھن نے جائزہ لینے پر آج کاغذ نگر منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر نے اپنے ہمراہ گیزٹ ہیڈ ماسٹر ضلع صدر P چندر شیکھر کے علاوہ اسٹاف کے ساتھ مل کر جناردھن کو شال پوشی و تہنیت پیش کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ لیڈی میونسپل کے وارڈ نمبر 7 میں آج کانگریس پارٹی امیدوار بھاگیوتی نے اپنے سینکڑوں حامیوں کے ساتھ ریلی کی شکل میں وارڈ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کی۔ کانگریس پارٹی کے امیدوار کو ہی ووٹ دینے کی اپیل کی۔ اس موقع پر پرشانت گوڑ، سائلو اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع منچریال کے کارپوریشن بلدیہ انتخابات میں 60 ڈویژن کے کانگریس امیدوار آفرین سلطانہ غوث الدین نے کہا بھاری اکثریت سے انہیں کامیاب بنایا جائے۔ انہوں نے کہا ہمیشہ میں عوام کی خدمت کرنے میں سب سے آگے رہا ہوں اور خدمت کرتا رہوں گا۔ کانگریس حکومت سے ہی ترقی ممکن ہے اور انہوں نے ڈویژن کے تمام مسائل حل کرنے کا تیقن دیا۔ کانگریس کے حق میں ہاتھ کے نشان کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی پرزور اپیل کی۔ جگتیال MLA ڈاکٹر سنجے کمار نے موتی روڈ پارٹی آفس میں جگتیال بلدی الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں پارٹی قائدینوں اور کانگریس کارکنوں کے ہمراہ میٹنگ میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا میدانی سطح پر کارکنوں اور قائدین کو جگتیال میونسپلٹی میں اکثریتی نشستیں جیتنے کے لیے تال میل کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور کانگریس حکومت کے قیام کے بعد سے نافذ کردہ فلاحی ترقیاتی اسکیموں سے عوام کو واقف کرانے کے لیے میدانی طور پر اسکیم چلائی جائے۔ اس پروگرام میں ٹاؤن کے اہم قائدین، امیدوار اور دوسرے موجود تھے۔ ضلع کے آصف آباد کے کاغذ نگر میونسپل وارڈ نمبر 10 میں آج مقامی BJP رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ نے اپنے ہمراہ BJP قائدین کے ساتھ مل کر میونسپل کونسلر وارڈ نمبر 10 میں میونسپل کونسلر امیدوار S لتا کے رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ نے گھر گھر جا کے انتخابی مہم چلائی۔ جگتیال MLA سنجے پر سابق وزیر T جیون ریڈی نے اندرا بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کڑے ریمارکس کیے۔ انہوں نے کہا ریاست میں کہیں نہیں ہوا، جگتیال میں طے بازار کو میں نے منسوخ کر دیا۔
हर दिन पीने के पानी की सरबराही मैंने करवाई। उन्होंने कहा जगतियाल एमएलए के पार्टी इन्हराफ पर एमएलए ने पार्टी नहीं बदलने का स्पीकर ने फैसला सुना दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि एमएलए भी इस पार्टी में है, कौन सी पार्टी में मालूम करने के लिए खुशी की बात है। जगतियाल मोते रोड पार्टी ऑफिस में एमएलए डॉक्टर संजू कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाहिशी की जगतियाल की तरक्की के लिए जिदोजहद करना अहम शाहरा यावर रोड की तोसी का मैं पाबंद हूँ। उन्होंने ऐलान किया कि अगर मेरी पार्टी जीती है तो अवाम को तरक्की करके बताऊंगा और खर्च को उतार दूंगा, हुकूमत के साथ मिलकर काम करूंगा। बीआईएस पार्टी का मैं एमएल हूँ, हर माह 5,000 रुपये मेरी तनख्वाह बीआईएस पार्टी को अदा करता हूँ। मैंने बीआईएस पार्टी में मौजूद होने का हलफनामा दाखिल किया हूँ। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का मैं चीफ मिनिस्टर या कांग्रेस पार्टी का कोई कायद नहीं। रेवंत रेड्डी के साथ जगतियाल इलाके की तरक्की के लिए मुलाकात किया, चीफ मिनिस्टर से शाल उड़ाया। जगतियाल रुकन असेंबली एन संजू कुमार ने पार्टी इन्हराफ के मसले को लेकर स्पीकर ने आज फैसले सुनाने के बाद जगतियाल मोते पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। एलआईडी म्यूनसिपल वार्ड नंबर 6 में आज कांग्रेसी उम्मीदवार सैयद गफ्फार ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम के घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की और म्यूनसिपल हुदूद में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों का जिक्र किया। इस मौके पर सखावत अली, सैयद मीर, श्रीवास जी और दूसरे मौजूद थे। एलआरडी बलदी इंतखाबात में 22 उम्मीदवारों इंतखाबात से किनारा कशी इख्तियार करने के बाद जुमला 45 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में बच गए हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर महेश कुमार ने मजीद बताया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से 12 उम्मीदवार, बीआईएस पार्टी से 12 उम्मीदवार, बीजेपी से 12 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। बीएसपी पार्टी से 2 उम्मीदवार, आज़ाद 7 उम्मीदवार म्यूनसिपल इंतखाबात के मैदान की जीनत बने हैं। इंतखाबात को पुरअमन व शफ़ाफ बनाने के लिए सरकारी अमला मुतहरिक हो गया है। तमाम पोलिंग मराकज़ पर बुनियादी सहूलतों का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। जिले के बी आसिफाबाद के कागज नगर में आज एमपीजे सदर फराज अहमद के ज़ेर निगरानी मुकामी बलदी इंतखाबात में बलदी कौंसलर की अवामी जिम्मेदारी और अवामी मसाइल और अवामी फलाह बहबूद के कामों को अंजाम देने से मुताल्लिक़ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से मैनिफेस्ट पोस्टर्स की रज़्म इजराई अमल में लाई गई ताकि अवाम में बल्दिया कौंसलर्स की जिम्मेदारी के बारे में तफसीली जानकारी हासिल हो सके। बोधन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी और कमिश्नर बल्दिया बोधन जाधव कृष्णा ने बोधन बल्दी कौंसिल की 38 नशिस्तों के लिए 11 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुकाबला करने वाले 162 उम्मीदवारों के नामों की खत्ती फहरिस्त को जारी कर दिया है, जिसमें बीआईएस के 24, एमआईएम के 23, कांग्रेस के 18 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इनके अलावा आम आदमी के 2, फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 और बीजेपी ने एक मुस्लिम खातून को पार्टी टिकट देकर बोधन बल्दी इंतखाबात में उतारा है। इनके अलावा बतौर आज़ाद उम्मीदवार बाज़ मुस्लिम कायदीन भी इंतखाबात में लेकर अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। मौलाना मोहम्मद शफीउद्दीन नदवी करस्पॉन्डेंट नौनिहाल हाई स्कूल कोटला उर्दू मीडियम मौलवी मोहम्मद वासिक के हाथों 3 फरवरी मदरसा नौनिहाल हाई स्कूल कोटला में तलबा में मुताले का शौक पैदा करने के मकसद से लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया। इस लाइब्रेरी में अखलाकी कहानियाँ, अम्बिया कराम के वाक़यात, साइंसी मालूमात, दीगर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल तकरीबन 350 से भी ज़्यादा किताबें मौजूद हैं, जो तलबा की तालीमी व फ़िक्री नशोनुमा में मुआविन साबित होंगी। बोधन के करीब वाक़े निज़ाम शुगर फैक्ट्री शकरनगर के अकबे में वाक़े रेलवे गेट से गुजरने वाली आवाम को पेश आने वाली दुश्वारियों का खात्मा करने मरकजी हुकूमत ने यहाँ अंडरपास रोड तामीर करने का फैसला किया और गुज़िश्ता रोज़ मंगल से बोधन बराए शकरनगर रेलवे गेट, मौजू, बिलाल, ओटपल्ली, निज़ामाबाद जाने रास्ते को 1 साल तक के लिए बंद कर देने का साउथ सेंट्रल रेलवे ने फैसला किया। महकमे रेलवे के अहदेदारों ने आवाम से ताउन की अपील की है। एलआईडी म्यूनसिपल वार्ड नंबर 10 में बीआईएस पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद यूनुस ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की और कार के निशान को ही वोट देने की अपील की। जिले के बी आसिफाबाद के कागज नगर बल्दी वार्ड नंबर 30 में बीआईएस पार्टी कौंसलर उम्मीदवार
मानिक राव के हक में BRS पार्टी साबिक सरपंच सैयद खिजर हुसैन ने अपने हमरा BRS पार्टी कारकुनों के साथ मिलकर घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई और मानिक राव के हक में वोट का इस्तेमाल करते हुए भारी अक्सर से कामयाबी दिलवाने की अपील की। LRD के मंडल ताड़वाई में नंदीवाड़ा में चीता गाय के बछड़े पर हमला करके हलाक करने का एक और वाकया पेश आया। कल रात राजू नामी किसान के बछड़े को चीता ने हमला करते हुए हलाक कर दिया, जिससे अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। अवाम ने बरहमी का इजहार करते हुए महकमे जंगलाती अहदेदारों को इसकी इत्तला दी और गम गुस्से का भी इजहार किया। फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर विनोद ने अवाम को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी और कहा, माजी में भी जानवर हलाक हुए किसानों को हर्जाना उनके खातों में जमा करवा दिया गया है। LRD साबिक रुकन असम्बली सुरेंद्र ने म्यूनसिपल के 12 वार्ड उम्मीदवारों का तारुफ करवाते हुए कहा, रुकन असम्बली म्यूनसिपल में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए। BRS हुक्मरानी में किए गए कामों को ही दिखाते हुए अवाम को धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, जबकि हर वार्ड में सिर्फ BRS के काम ही अवाम को नजर आते हैं। रुकन असम्बली का झूठ नहीं चलेगा। अवाम म्यूनसिपल इंतखाबात में कांग्रेस को मजा चकाएंगे। इस मौके पर जालिंधर रेड्डी, नरसिमुलू, इमरान, यूनुस, सतीश और दूसरे मौजूद थे। LRD म्यूनसिपल इंतखाबात का माहौल गर्मा गया है। रुकने असम्बली मदन मोहन ने आज वार्ड नंबर 11 में हंगामी दौरा करते उम्मीदवार स्वप्ना के इंतखाबी मुहिम चलाई, राय दहिंदों से मुलाकात की, कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को ही वोट देने की अपील की। LRD में पुलिस ने म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र मुतहरिक रहते हुए आज मिनी टैगमेंट पर सेकंड सब इंस्पेक्टर सुब्रमण्यम चाई ने अपने AR खुसूसी अमले के साथ शाहराह पर गाड़ियों की तनखी अंजाम दी। नकद रकम और शराब की नाजायज मुंतकिली पर कड़ी नजर रखी हुई है। उन्होंने मजीद कहा, इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने के लिए पुलिस चौकस है। के श्री हरिराव इंचार्ज कांग्रेस पार्टी निर्मल ने आज बल्दी वार्ड नंबर 18 और 19 में कांग्रेसी उम्मीदवार C नरेश के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। C नरेश को भारी अक्सर से कामयाब बनाते हुए कांग्रेस पार्टी के हक में अपना वोट इस्तेमाल करने की अपील की। वहीं रोजा रानी को भी कांग्रेस के हक में वोट देकर राय दहिंदों से उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। उनके हमरा कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बादजा मिस्टर के श्री हरिराव ने बल्दी वार्ड नंबर 15 में कांग्रेस उम्मीदवार अंबाजी राठौड़ के हक में घर घर पहुंचकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। वाज़ेह है कि अब बल्दी इंतखाबात की रायदही को बहुत कम वक्त बच चुका है, जबकि निर्मल में कांग्रेस कायदीन अलग अलग वार्ड और बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। बल्दिया निर्मल का ओहदा खातून के लिए महफूज है और बल्दिया निर्मल में जुमला 42 वार्ड पाए जाते हैं। बांसवाड़ा के कांग्रेस पार्टी के बागी उम्मीदवार कांग्रेस को छोड़कर BRS में शामिल हो गए। बांसवाड़ा म्यूनसिपल इलेक्शन के कांग्रेस पार्टी से B फॉर्म नहीं मिलने पर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक MLA रविंदर के ग्रुप के कुछ उम्मीदवार कांग्रेस को खैराबाद कहकर BRS में शामिल हो गए। इंदिरा करण रेड्डी साबिक वजीर जंगलात आज निर्मल के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई। वार्ड नंबर 10 में सुधाकर कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की। इस मौके पर वार्ड नंबर 2 में प्रमिला को कामयाब बनाने की अपील की। वार्ड नंबर 3 में कांग्रेसी उम्मीदवार श्रीलता को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने राय दहिंदों से पुरजोर अपील की। उन्होंने तमाम तबकात के अवाम से अपील की कि निर्मल के तमाम वार्ड में कांग्रेसी उम्मीदवारों को ही भारी अक्सरियत से कामयाब करें। सैयद आरिफुद्दीन हुसैनी सद मस्जिद दरगाह हज़रत सैयदना रोशन शहीद शमोन पेट खम्मम रोड पर आज मुनक़िदा प्रेस मीट से खिताब करते हुए सैयद आरिफुद्दीन हुसैनी ने ऐलान किया कि उर्स हज़रत सैयदना रोशन शहीद बतारीख 5 फरवरी बरोज जुमेरात निहायत अक़ीदत के साथ मनाया जाएगा। जिले मंचियाल के चिनूर के साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन अर्चना रामलाल गीलदा BRS पार्टी को अलविदा कहकर रियासती कांग्रेस सद महेश कुमार CM रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में चिनूर MLA वजीर जी विवेक वेंकट स्वामी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। महेश कुमार ने कांग्रेस पार्टी खंडवा डालकर इनका इस्तकबाल किया।
वजीर आला रेवंत रेड्डी के 6 फरवरी को दौरे निजामाबाद के पेश नजर जिले कलेक्टर इलाती पार्टी और पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने निजामाबाद रूरल डॉक्टर भूपत रेड्डी, जिले कांग्रेस सदर नागेश रेड्डी, मोहम्मद जावेद अकरम और दीगर कायदीन के साथ इंतजामात का जायजा लिया। कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने जोर दिया कि वजीर आला के दौरे के दौरान सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम, ट्रैफिक के मौसर इंतजाम और महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल को यकीनी बनाया जाए। वार्ड नंबर 41 में कांग्रेस उम्मीदवार फहीम खान की अहलिया मुकाबला कर रही हैं। इस वार्ड में आज यूथ लीडर ख्वाजा मंसूर अली की क़यादत में इंतखाबी मुहिम चलाई गई, जिसमें ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर ख्वाजा मंसूर अली ने इस वार्ड के तमाम राय दहिंदों से अपील की कि इस वार्ड से फहीम खान की अहलिया को कामयाब बनाया जाए और वार्ड की तरक्की के लिए कांग्रेस कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। इसी तरह मोहल्ला वैएसआर कॉलोनी वार्ड नंबर 22 में साबिक़ बल्दिया इमरान उल्लाह ने इंतखाबी मुहिम चलाई। राय दहिंदों से अपील की कि वो इस वार्ड से कामयाब करे। इस वार्ड की तरक्की के लिए अपने आप को वक्फ कर दूंगा। वाज़ेह है कि हर सियासी जमात निर्मल के तमाम 42 वार्ड में मुतहरिक हो चुकी है। निर्मल में बल्दी इंतखाबात की मुहिम उरूज पर जा रही है। तमाम सियासी जमातों के कायदीन अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आज भी आए कायदीन भी अपने पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए घर घर पहुंचे। राय दहिंदों से BIS के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए अपील की। इस मौके पर साबिक़ मुआविन रुकन बल्दिया मोहम्मद सलमान खान ने तमाम तबक़ात के राय दहिंदों से अपील की कि वो चंद्रशेखर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR के दौर को याद करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज वार्ड नंबर 14 में मियां अजहरुद्दीन एडवोकेट की अहलिया अफशा जबीर मुकाबला कर रही हैं। वार्ड नंबर 8 में शेख सलमान मुकाबला कर रहे हैं, तो वहीं श्रीकांत यादव वार्ड नंबर 9 से इंतखाब लड़ रहे हैं और अपने अपने वार्ड के राय दहिंदों से BIS को वोट देते हुए कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। LID के वार्ड नंबर 10 के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार पद्मा सिकांत ने वार्ड की आवाम से कांग्रेस हुकूमत के तरक्याती काम देखते वोट देने की अपील की और वार्ड में मजीद बुनियादी सहूलतों को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। जिले के बियासीबाद के कागजनगर म्युनिसिपल वार्ड नंबर 10 में आज मुकामी BJP रुकन समी डॉक्टर P हरीशौर ने अपने हमरा BJP कायदीन के साथ मिलकर म्युनिसिपल काउंसिलर वार्ड नंबर 10 में म्युनिसिपल काउंसिलर उम्मीदवार इफ्तिताह के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। बांसवाड़ा में 11 फरवरी को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात को पूरा मुस्तफा शफाफ के लिए पुलिस की जानिब से सख्त इंतजाम किए जा रहे। इसी के पेश नजर कामरेड्डी जिले SP राजेश चंद्रा ने बांसवाड़ा पहुंचकर मुकामी पुलिस अहदेदारों से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के ताल्लुकात से मालूमात हासिल की और बाद चंद हसास पोलिंग मराकज़ का भी मुआयना किया।